أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. ہمیں پارٹ نمبر 2 میں ہم ایک گناہگار انسان کے بارے میں پڑھے ہی اب تک. انشاءاللہ کیا ہے اس پر تھوڑا سا میں مختصر میں بیان کرتی ہوں کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے اور ایک راہب کے پاس گئے. وہ بھی میرے گناہوں کا توبہ ہے. اس نے کہا، وہ راہب نے کہا نہیں. اس کے بعد وہ راہب کو بھی قتل کیے. 100 گناہ کرنے کے بعد میں پھر پوچھنے کے بعد میں پھر ایک راہب کا پتہ چلا. وہ راہب نے ان کو مشورہ دیے. کیا مشورہ دیے کہ یہ بستی سے نکل جاؤ، دور کی ایک بستی میں جاؤ، ادھر اللہ کی عبادت کرنے والے ہی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، پھر پلٹ کو بستی کو مت آؤ، کیونکہ تمہیں اسلام قبول کرنا، اسلام پہ چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ راہب کہنے سے وہ آدمی نکلا، اور نکلنے ٹائم پہ راستے میں ہی اس کی جان قبض کرنے کے لیے فرشتے رحمت کے اور عذاب کے فرشتے آئے. دونوں میں باہم جھگڑا ہوتا تھا. بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آیا اور ان 2 فرشتوں کو مشورہ دیا کہ تم اپنی زمین کو ناپو. اس شخص کو سے زمین کے قریب ہے، وہ لوگ ان کی روح قبض کرو. یہ بات سن کر وہ لوگوں نے زمین کو ناپنے کے بعد میں رحمت وہ کس جگہ جانا ہے اس کے قریب تھا. جب رحمت کے فرشتے وہ اس کی روح قبض کر لے کو گئے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو بخش دے. یہ صحیح بخاری سے ہمیں معلوم ہے الحمدللہ. اس کے بعد میں ہمیں دیکھیں گے کیا اس کا مطلب ہے. صرف خدا کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کیجیے اور اس کے حضور گڑ گڑائے ہوئے اور اسی کے سامنے اپنی عاجزی، بے کسی اور خطا کاری کا اظہار کیجیے. عاجزی اور انکساری انسان کا وہ سرمایہ ہے جو صرف اللہ ہی کے حضور پیش کیا جا سکتا ہے، اور جو بد نصیب اپنے عاجزی و احتیاجی کا یہ سرمایہ اپنے ہی جیسا مجبور بے بس انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو پھر اس دیوالے کے لیے پاس اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا، اور وہ ذلیل و رسوا ہو کر ہمیشہ کے لیے در کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور کہیں عزت نہیں پاتا. دیکھو اب اس میں کیا معلوم ہوا ہمنا، جو بھی ہمیں گڑ گڑا کر دعا کرنا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں. اسی لیے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی ندامت بھی کرنا ہے اور اس کے سامنے گڑ گڑا کر دعا بھی کرنا ہے. اور اسے چھوڑ کر تھوڑے انسان کیا کرتی ہیں، ادنا وہ بھروسہ کرتے ہیں. ہمیں ہمارے باتوں ان کو بولے تو
हाँ उन्हें हमारी हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं, इसलिए उनको सुनाने के लिए समझते हैं। इसमें क्या अल्लाह ताला क्या बोला, नहीं वो अगर आत्मा पर भरोसा करने वालों के लिए हमेशा के लिए क्या है, दर दर ठोकरें खाते रहते हैं, क्योंकि ये ठोकर वो ठोकर ऐसा। एक एक को मांगे तो वो क्या बोलता है, ये क्या अल्लाह तुम मेरे से मांगने की कोशिश करती हैं, ऐसा भी बात आने जाती। इसीलिए मांगे तो सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए, क्योंकि वो गनी है, वो बेनियाज है, देने में लेने में सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। इसलिए हम जो भी हमें करते हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह पर भरोसा करना। इससे ये बात भी मालूम होता है, कोई दरगाह करने जाने से, कोई इधर से उधर से, कोई हाजत तलब करने से उनके हाथ में कुछ भी नहीं, क्योंकि वो भी हमारे जैसा मुर्दा है, वो भी मर के खबरों में हड्डी के जैसा पड़को है। उनसे मांगने से क्या होता, मांगने वाले भी कमजोर और मांगा जाते ही उन्हें भी कमजोर। एक सूर्य में ये भी पता चला, इंशाल्लाह उसका भी मैं पसे मंजर मैं बोलूंगी इंशाल्लाह। इसीलिए क्या है, उन मांगने वाले भी कमजोर और जिससे मांगा जाता है वो भी कमजोर। इसलिए हमें मांगे तो किससे मांगना, बस अल्लाह से मांगना। अल्लाह का इरशाद है, व रब्बुकल गफूरु दुर रहमा लौ युआखिदुहुम बिमा कसबू लअज्जल लहुमुल अज़ाब बल लहुम मौइदन लन यजिदु मिन दूनिही मौइला। सूरह अल कहफ आयत नंबर 57 में, 58 सॉरी। क्या है इसका तर्जुमा इंशाल्लाह। और आपका और आपका परवरदिगार गुनाहों को ढांपने वाला है। क्या है, हमारे परवरदिगार अपने गुनाहों को, अपने बंदों के गुनाहों को ढांपने वाला है और बहुत ज्यादा रहम फरमाने वाला है। और वो उनके करतूतों पर उनको फौरन पकड़ने लगता तो अजाब भेज देता। देखो अल्लाह ताला जब भी हमारे गुनाहों पर गुस्सा आको, अल्लाह ताला हमारा पकड़ने का कोशिश करता तो हमें फौरन अजाब देता, क्योंकि अजाब नहीं देता। अल्लाह ताला क्या करता, मगर उसने अपनी रहमत से अपनी रहमत से एक वक्त उनके लिए मुकर्रर कर रखा है। देखो रहमत, मेरे मालिक रहम करने वाला है, बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। अगर चाहे इंसान जब गलती करे उसी वक्त ही पकड़ कर उसका रूह कब्जा करे, नहीं उसको ऐसा अजाब भेजा, वो आदमी पलटने का मौका नहीं। क्या अल्लाह ताला इसलिए वो उसका गलती को ऐसा रखो, फिर उसे बदलने के लिए एक मौका देता उसे। वो फिर भी एक वक्त कब, कयामत के दिन, जो भी हमें बदले नहीं बदले, हमें उस गुनाह से सबक नहीं लिए, कब पकड़ेगा अल्लाह ताला, वो गुनाह से भी ऐसा जमा कर को, उसका सवाब से भी ऐसा ही जमा जमा कर को कब पकड़ेगा। वो एक दिन कब है, कयामत का दिन। उसमें एक वक्त उनके लिए मुकर्रर कर रखा है, कौन सा, कयामत का वक्त। इससे बचने की कोशिश करना। इसीलिए हमें क्या करना, दुनिया में जो सीधा रास्ता चलते हैं, जो सिराते मुस्तकीम पर कायम रहते हैं, उनके लिए आसान हो जाएगा रास्ता। और ये लोग बचने के लिए उसके सिवा कोई पनाहगाह ना पाएंगे, तो अल्लाह के सिवा कोई भी पनाहगाह ना पाएंगे। तो दुनिया में हमें समझते हैं ये यहाँ गए तो हमारी ये मिलती है, यहाँ गए तो हमारा औलाद मिलती है, यहाँ करने से हमारी रोजी मिलती है। वो क्या बहुत से शिरक करते हैं अल्लाह के साथ। ऐसा यीशु भी क्या बोलते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछता, कौन है कौन है बादशाह, कौन है तुम्हारी मदद करने वाला, कौन है। अच्छा दिन मैं ही बादशाह हूँ। अगर कोई तुम्हारा बादशाह है, लाओ मेरे सामने। कौन भी रहते टाइम में पूरी दुनिया भी तबाह हुआ थी, फरिश्तों को भी मौत दे डालता अल्लाह ताला। वो बार उन्हें अल्लाह अकेला ही सवाल करता, उसका जवाब भी अल्लाह ताला देता, मैं ही सारे जहां का मालिक है, मैं हूँ सारे जहां का बादशाह, आज का दिन कोई भी नहीं मेरे सिवा। इसीलिए हमें क्या करना, अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मालूम नहीं, मालूम हो को मालूम होना को हमें शिरक भी करती, ना झूठ भी बोलती, ना कुछ भी, बड़े से बड़े गुनाह भी हो जाती। फिर भी हमें क्या करना, वो गुनाहों को इसराफ नहीं करना, तौबा करना। और तौबा करके सच्चा तौबा करके अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के दुआ करना। अल्लाह को यकीन रखना हमारे तौबा माफ करने के लिए, हमारे तौबा कबूल करने के लिए, हमारे गुनाह माफ करने के लिए अल्लाह पर पूरी उम्मीद रखना और यकीन के साथ हमें इबादत में मशगूल रहना। और एक और सूरह शुअरा में है, हुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादी व याफ़ू अन सय्यिआती
यअलमु मा तफ़अलून, सूरह अश-शूरा आयत नंबर 25 में उसका तर्जुमा है, और वही तो है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है। देखो कौन है ये, एक आयत से हमें मालूम हुआ था कौन हमारी तौबा कबूल करता, कौन हमें बचाता। कुरान पढ़े तो ना को खाली कुरान पढ़ने वालों को तर्जुमे से नहीं पढ़ने से, खाली पढ़ने वालों को ये बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि अल्लाह ताला खोल कर उसकी किताब में हर बात का वाज़े कर रखा है। वो पढ़ने के वो तर्जुमा, इसीलिए वो तर्जुमा भी जानना, कुछ ना कुछ उम्र बढ़ गई हम नहीं पढ़ सकते ऐसा नहीं। जब तक हमें मरने जाते हैं, जब तक भी हमें इल्म हासिल करने के लिए हमारा मौका है। इसलिए अच्छा बुरा भी मालूम करना। इसका तर्जुमा क्या है? कौन है अल्लाह के सिवा अपने बंदों का तौबा कबूल करने वाला? कोई भी नहीं। अल्लाह ताला सवाल करता है ये बात का, और उनकी खताओं को माफ फरमाता है। और उनके खताओं को कौन? अल्लाह से ना तौबा कबूल करना, और अल्लाह उनके खताओं को माफ करने वाला। हमारे सबकी खताओं को अल्लाह ताला माफ करने वाला, और वो सब जानता है जो तुम करते हो। देखो ये बात क्या है, वो सब जानता है। कौन? अल्लाह ताला। जो तुम करते हो, तुम क्या करते हैं? हमें तो अदना से बचने के लिए छुप छुप के कुछ भी करते, छुप छुप के चोरी करते, छुप छुप के जिना करते, छुप छुप के कुछ भी हो जाता, बड़े से बड़े गुनाह से हो जाते, झूठ बोलना सब भी। ये क्या अदना से हम छुपा सकते हैं, मगर अल्लाह से नहीं छुपा सकते। इसीलिए क्या होना, जो भी तुम करते हो वो जानता है। कौन? अल्लाह ताला। दरअसल इंसान को ये यकीनी रखना चाहिए कि फौरन फौज और फलाह का एक ही दरवाजा है। क्या है? फौज और फलाह का, तो कामयाबी का। फलाह का एक ही दरवाजा है, और इसे जो धुतकार दिया गया, फिर वो हमेशा के लिए जलील व महरूम हो गया। देखो एक बार अल्लाह के रहमत से वो दरवाजे से धुतकार कर दिया कि, तो उससे बाहर निकाल दिया, वो हमेशा के लिए जलील और महरूम हो गया। मोमिनाना तर्ज व फिक्र यही है कि, तो मोमिन का क्या फिक्र है, मोमिन का तर्ज फिक्र क्या है, इसमें बयान होता है कि बंदे से ख्वाह कितने भी गुनाह क्यों ना हो जाए, उसका काम ये है कि वो वो खुदा ही के हुजूर गिड़गिड़ाए। देखो मोमिन से कितने ही गुनाह क्यों ना हो, उसे क्या होना, उसे होना अपने खुदा के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करना, गिड़गिड़ा कर रो कर अपने गुनाह की नदामत होकर, या अल्लाह मेरे से ये गुनाह होगा, इससे मैं बचने की कोशिश करने की तौफीक दे, अल्लाह मुझे सीधा राह बता दे। तो बोलकर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर रो कर दुआ करना चाहिए, और उसी के दामन पर अपनी नदामत का आंसू टपकाए। देखो नदामत के आंसू, ये एक आंसू अल्लाह के लिए हमें रोते हैं, अल्लाह ताला उसका अजर बहुत कर देता है, अल्लाह उसके जरिए से बहुत गुनाह माफ कर देता है। इसीलिए अल्लाह के सामने अपनी हाजत रखने के टाइम पर हमें दिल से अल्लाह को बोलकर, हमें जब हमारे आंखों के आंसू निकलते हैं, अल्लाह ताला को बहुत पसंदीदा है, मेरा बंदा मेरे लिए आंसू बहाकर अपनी तौबा करना चाहता है। बंदे के लिए और खुदा के सिवा कोई और दरवाजा नहीं। तो बंदे के लिए, बंदों के लिए क्या है, अल्लाह के सिवा कोई भी दरवाजा नहीं जहां से उसे माफी मिल सके, जहां से उसे माफी कहाँ मिल सकती? ना कोई पीर बचा सकता, ना वली बचा सकता, ना कोई नबी बचा सकते, ना कोई भी बचा नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई दरवाजा नहीं और कोई माफ करने वाला का माफी मिल सके। हद ये है कि अगर आदमी खुदा को छोड़कर रसूल को खुश करने की कोशिश भी करेगा, तो देखो यहाँ अब ये बात मालूम होती है, बोले ये वो ऐसा करती को बोल को, ऐसा सभी करने वालों की ये बात पता चलती है। रसूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हमारे आखिर नबी भी है, और उनसे भी पहले रसूलें बहुत से आई, नबी बहुत से आई, उनको ही अल्लाह ये मौका नहीं दिया, बोले हमको कैसे देता? नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें क्या बोला, खुला तौर पर बता दिया, अल्लाह को छोड़कर वो रसूल को खुश करने की कोशिश भी करेगा, तो खुदा के दरबार में उसकी उस कोशिश की कोई कीमत ना लगेगी। देखो अब हमें क्या करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए हमें उनके सामने कुछ भी करते हैं, ये अल्लाह ताला को पता है, क्योंकि
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने से अल्लाह खुश नहीं होता। अल्लाह जो करे वही हमें करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हमें सिखाए। मेरी खबर को सिजदा ना करो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी खुतबे ये बात भी बोले कि मेरी खबर को सिजदागाह मत बनाओ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं शिरक सबसे बड़ा गुनाह है। और इसीलिए हर दावत में तौहीद की दावत देना चाहिए, तौहीद पर चलना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी कोशिश है। यहाँ क्या बोले अल्लाह ताला, अगर तुम्हें रसूलों को खुश करने की कोशिश करे तो भी अल्लाह के दरगाह में उसका कोई कोशिश कीमत ना लगेगी, और वो धुतकार दिया जाएगा। रसूल देखो, और धुतकार जाएगा तो हमें क्या समझते हैं? अब अल्लाह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलों की तरफ से हमें मना लेंगे तो बोल का ऐसा समझते हैं। ऐसा ऐसा समझने का दूर, आपके जमाने में क्या है, ज्यादा बोले ये बोली वो बोली, ऐसे 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 बहुत से 11 करना, ऐसा सभी ये क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला वो मर्तबा नहीं दिया, अब ओली को कैसा देता? इसीलिए बस सिजदा करना है सिर्फ अल्लाह को, अल्लाह से मांगना, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर रोना। ऐसा सूरह बकरा में एक आयत भी है, उनके लिए शिरक करते तो लोगों के लिए ऐसे काले खतरे ही और ऐसे मुर्दे ही, उनको जला को उनके आग में इनको डाला जाता, क्योंकि वो खबरों में से निकालने के बाद में वो आग में डाला जाता। जब क्या है इनके गुनाह को बोले तो ये अल्लाह को छोड़कर दूसरों को शिरिक बनाए, जिसको शिरिक बनाए उनको भी उसमें डाला जाता, वो खतरों को भी। इसलिए जब जो भी वली है वो नेक इंसान है, वो नेक बंदा है, वो दुनिया में अच्छे काम करके वो उनका इंतकाल हो गया, वो मर गई, उनका दर्जा अल्लाह ताला उनको देगा, क्योंकि ये जो भी करते हैं उनके सिवा वो सब क्या करती हैं, वो सभी आग में जा गिरती। इसलिए हम जो भी मरना हमें करना है बस अल्लाह से। देखो, रसूल भी खुदा का बंदा है, और वो भी इसी दर का फकीर है। उस दर का फकीर है कि तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जैसा ही एक फकीर इंसान है, है, फिर भी हमारे जैसे नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मर्तबे वाले, क्योंकि इस आयत में फकीर का बात इसलिए आया कि हमारे जैसे इंसान है। इससे भी उसे भी जो अजीम मर्तबा मिला, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीम मर्तबा मिला है, वो उसकी अजमत का राज भी यही है। क्या है अजीम मर्तबा, क्यों दिया गया अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? वो अल्लाह का सबसे ज्यादा अजीज बंदा होता है। तो अच्छा, अल्लाह के नजदीक सबसे अजीज कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिमुल अंबिया नबी है, खातिमुल नबी है। अंबिया के सबसे आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला भेजा दुनिया में, उनके जरिए से हमारे ये सब मालूम हुई। और आम इंसानों के मुकाबले में कहीं ज्यादा अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाता है कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिड़गिड़ा कर रोते हैं अपनी उम्मत के लिए, अपने गुनाह के लिए, अपने अहल अवाल के लिए, अपने सहाबा के लिए। बहुत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात गिड़गिड़ा कर रोते रहीं और अल्लाह से माफी मांगते रहीं। वो भी अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लोग खुदा से अपने गुनाहों की माफी चाहो और उसकी तरफ पलट आओ। मुझे देखो, मैं दिन में 100 बार खुदा से मगफिरत की दुआ कर रहा हूँ। कौन बोलती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों, अल्लाह की तरफ पलट आओ, अल्लाह के साथ शिरिक मत करो, क्योंकि मुझे देखो, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत की खुशखबरी दिए, फिर भी क्या करते रहे? दिन में 100 बार इस्तगफार करते रहे। कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को ये बात बताती हैं, 100 बार इस्तगफार करता हूँ, करता हूँ। मुनाफिक, ये मुस्लिम की हदीस है, मुनाफिकों का जिक्र करते हुए खुदा ताला ने फरमाया, यहलिफून लकुम लितरदा अनहुम फ़इन्न फ़इन तरदौ अनहुम फ़इन्नल्लाह ला यरदा अनिल कौमिल फासिकीन। सूरह at-तौबा आयत नंबर 96। मुनाफिकीन मुनाफिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कसमें खाएंगे। देखो, बोली ही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करेंगे वो लोग।
کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی بھی ہو گئے تو خدا ہرگز ایسے بے دینیوں سے راضی نہ ہوگا. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بولے نا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش کرنے کی کوشش کرے ان کے لیے کوئی بھی اجر نہیں. کیوں؟ یہ اللہ کو راضی کرنے کا سوچنا. اگر یہ منافقین کیا کرتے ہیں، جھوٹے باتیں بول کر کوئی بہانے بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے. یہ سچا مومن ایسا نہیں. اللہ کو راضی کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہمارے ذمہ ہے. قرآن پاک میں حضرت کعب ابن مالک کا عبرت انگیزی واقعہ ہمیشہ کے لیے سبق ہے. ایک کعب ابن مالک ایک صحابہ ہے. ان کا قصے سے ہمارے کو بہت سے سبق ملتے ہیں انشاءاللہ. کہ بندہ سب کچھ سہے ہر آزمائش برداشت کرے. کہ تو اللہ بندے پر جو کچھ بھی آئے اسے سہنا اور آزمائش کو برداشت کرے، لیکن خدا کے در سے اٹھنے کا تصویر دل میں نہ لائے. وہ جو بھی کرے جو بھی نہ کرے کیا کرنا ہے، اللہ سے بڑھ کو جانے کی کوشش کرنا نہیں. جو بھی اللہ کا احکام ہے وہ احکام کے برابر ہمیں چلنا چاہیے. دین کی راہ میں آدمی پر جو کچھ بیتے اور خدا کی طرف سے اس کو جتنا بھی روندا جائے اس کی زندگی کو چمکنے اور اس کے درجے بلند کرنے کا ذریعہ ہے. دیکھو کتنا روندا جائے گا تو مطلب دیکھو اس میں کیا ہے، آدمی کو جو کچھ بھی بیتے، اس پر جو کچھ بھی بیتے اللہ کی طرف سے اس کو جتنا بھی روندا جائے یعنی لگڑا جائے. بولتے نہیں کتنا اللہ تعالیٰ دباتا ہے، کتنا ظلم ہے. قبول کا سب بہت سے ایسے ظالم باتیں ہمیں اللہ پر بولتے ہیں. ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ جو بھی امتحان دیتا ہے مومن کی امتحان لیتا ہے اور اسے اگر جب مال دے کر آزماتا ہے، مال دے سکا آزماتا ہے، اولاد دے کر آزماتا ہے، اولاد نہ دے کر آزماتا ہے. یہ سب کیا وہ مومن کو اس کے درجے بلند بھی ہوتے ہیں اور وہ اس پر صبر کرنے سے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. اللہ اسے ایسا چمک دیتا ہے، دنیا وہ بہت روشن ہوتا ہے آگے جا کر. یہ بے عزتی دائمی عزت کا یقینی راستہ ہے. کہ تو ہمیں سمجھتے ہیں جس کو بھی ظلم ہوتا ہے، جو بھی تکلیف میں ہے، اسے دیکھ کر بہت سے لوگ ہنستے. کیوں؟ یہ کچھ کرا ہے اس لیے اسے اتنا گناہ دیا کو بول کو بھی ہنستے ہیں. ایسا نہیں ہنسنا. جو بھی دائمی عزت کا یقینی راستہ ہے. اب دنیا میں وہ تکلیف ہے، وہ فقیر ہے، پھر اسے کوئی نہیں ہوتا. انشاءاللہ سے آگے جا کر اسے جنت میں بھی بہت سے درجے مل سکتے ہیں. اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے، اور جو خدا کے دروازے کو چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کرے. تو اب جو بھی ہمیں تکلیف آئے تو وہ تکلیف میں ہمیں خدا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو تلاش کرنے سے کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. بس دنیا میں کامیابی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ شیطان کا کام ہے. اس کے گئے تو ہم خوش رہ سکتے ہیں، ادھر جانے سے ہمارا یہ ہوا، ادھر جانے سے ہمارا اولاد ہوا. یہ بہت سے شرک میں شیطان آسان کرتا ہے کام. اس لیے جو بھی تکلیف آئے، جو بھی برداشت آئے، جو بھی آزمائش آئے مومن پر، وہ کیا کرنا؟ صبر سے کام لینا اور استغفار کرتے رہنا اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا، نماز قائم کرتے رہنا، نماز میں اللہ سے مانگتا رہنا. انشاءاللہ اور چند دن کے بعد میں آسانی ہو جائے گا. اس کے بعد اس کو کہیں بھی عزت میسر نہ آتی. دیکھو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف سے عزت پانے والا کہیں بھی عزت نہ آ سکتی. وہ ہر جگہ ذلیل ہوگا. تو ہر جگہ بھی ذلیل ہوگا. دوسروں سے مانگنا، دوسروں سے یہ کرنا، یہ سبھی کیا ہوتا؟ ذلیل ہوتا. ذلیل کے تو ایک کام آتا تو انسان یہ کیا ہر ٹائم ایسا کرتا ہے کرتے. اور زمین و آسمان کی کوئی ایک آنکھ بھی اس کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتی. اب ایسا کرنے سے ایک دو بار ایک انسان کو یہ کرنے سے
3 बार क्या करता है, इससे बात करना ही अकल कम ऐसा समझते हैं। अल्लाह ताला ऐसा नहीं, अल्लाह ताला के सामने कितना भी तुम ये करो, अल्लाह ताला उसके दर्जे बुलंद करता होता है। इसीलिए हम क्या करना, जो भी तकलीफ आए, जो भी हम परेशान आए, बस सिर्फ अल्लाह से ये करना। وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم يتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. سورہ التوبہ آیت نمبر 118. اور ان تینوں کو بھی اللہ نے معاف کر دیا جن کا معاملہ میں ملتوا کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی. کیا یہ 3 صحابہ رہے، ان کے نام آگے دیکھیں گے. ان پر زمین بھی تنگ ہو گئی، اتنی بڑی زمین ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی. کیا زمین پر جینا مشکل ہو گیا. جب زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر بارہ ہونے لگے، تو ان کی جان بھی ان پر تنگ ہونے کا محسوس ہوا، کیونکہ انہیں کے بہت زیادہ بھی گناہ نہیں، بس سستی کی وجہ سے ہوا ان پر. اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. تو انہوں جان لیے کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی بھی پناہ گاہ نہیں، کون بھی ہمیں پناہ دے سکتا نہیں، کون بھی ہمارے نزدیک نکال سکتا نہیں، کیونکہ اللہ سوائے اس کے جو خود اسی کا پناہ لی جاتی ہے. کیا خود اسی کا پناہ کہتے کیا ہے؟ اللہ کا پناہ لینا چاہیے. اب اسے اللہ کو چھوڑ کر کس نے کہ تو پناہ نہیں ہوتی، نہیں دیا جا سکتا. جو خدا اپنے مہربانی سے ان کی طرف پلٹتا کہ وہ اس کی طرف پلٹ آئے. تو اللہ تعالیٰ اپنے مہربان کا تو رحمان کا کیا ہے؟ مہربان، بہت مہربان. اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں کو بھی موقع دیتا ہے ایک بار، کیونکہ پلٹو تم، میں تمہارے ساتھ پلٹ کے آتا ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھتی یہ ہنگا کو بلانے سے، ہنگا کو یہ کرنے سے، یہ اللہ سے یہ سفارش کرتی ہمارے لیے، یہ والی سفارش کرتی، وہ یہ سفارش کرتی، ایسا کرنا یہ سو بھی کس کا کام ہے؟ یہ دین میں یہ بات نہیں، کیونکہ ہمیں اس سے پوچھنے سے ڈائریکٹ ہمیں اللہ سے پوچھنا چاہیے. اللہ کے درمیان، ہمارے درمیان پردے کا بھی حائل نہیں. اللہ تعالیٰ جب بھی سچے دل سے بلاتا ہے اللہ کو کوئی بندہ، اللہ تعالیٰ اس کی مناجات سنتا ہے، اس کا دعا قبول کرتا ہے. اس لیے ان تینوں نے کیا کیا، اب ہمارے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کون بھی ہمارے کو مہربان نہیں، اللہ کے سوا اس کی طرف پلٹنا ہے تو بول کر ان کے دل پر یہ ہو گئی اور اس کی طرف پلٹ آئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قدم اللہ کی طرف ڈالنے سے اللہ 100 قدم ہمارے طرف ڈال کر ہمارے قریب ہو جاتا ہے. ویسا اللہ کو چھوڑ کر ہمیں کیوں دوسروں کو ہمیں نہیں بلانا چاہیے. اسی لیے اللہ سے ہمیں معافی مانگنا، اللہ سے ہمیں درگزر کرنا، اللہ ہمارے سے درگزر کرنا، ہمارے گناہوں کو بھی اللہ معاف کرنا ہے. بلا شبہ وہ بڑا ہی معاف فرمانے والا اور انتہائی مہربان ہے. دیکھو بڑا ہی معاف کرنے والا کو تو کون، اللہ کے سوا کوئی بھی معاف کرنے والا نہیں. اسی لیے ہمیں جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا. یقین صحابہ کا، یہ 3 صحابہ کا نام آیا اس میں. یہ صحابی کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھا. ان تینوں بزرگوں سے حضرت کعب ابن مالک ایک صحابی، ان کا نام یہ، اور دوسرے صحابی حضرت مرارہ ابن ربیع، یہ دوسرے صحابی، اور حضرت ہلال ابن امیہ مراد ہی. ان 3 نے مراد ہی تو کیا، ان 3 کا قصہ ہے. یہ کیسا چلا یہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. 3 نے ہم کو اللہ تعالیٰ زمین کو تنگ کر دی 50 دن تک. اور ان تینوں کی مثالی توبہ یہ رہتی زندگی تک کے لیے مومنوں کے واسطے مثال رہا ہے. تو ان تینوں کی زندگی سے
किताब पढ़ने वालों को, कुरान पढ़ने वालों को और ना के इससे जानने वालों को ये सबक है एक हमारे लिए, क्योंकि क्या उस टाइम में क्या काम करना इसमें खोलकर बयान करना किया। हजरत काब इब्न मालिक काब इब्न मालिक जो बुढ़ापे में नाबिना हो गए थे। नाबिना के तो उनका आंखों की नजर बहुत से कम हो गई और अपने साहबजादे के सहारे चलकर चलकर चला करते थे। तो अब उन्होंने अपने साहबजादा को तो अपने बेटे के जरिए उनके सहारे से चलते रहे। उन्होंने खुद मिसाल अपनी मिसाल के तो अपनी मिसाल देकर समझाती ही उनको। मिसाली तौबा का नसीहत अमवाज वाकया अपने बेटे से बयान किया था। अपने बेटे के सहारे चलते भी उन्होंने ये किस्सा बयान किए सुना को। मैं ऐसा करी, मैं ऐसा हुआ को बोलकर हमें बोलते हैं ने, मैं ऐसा करने से ऐसा हुआ को बोलकर बोलते हैं ने, ऐसा अपने बेटे को ये बात समझाते हैं उन्होंने। क्या बात जो हदीस की किताबों में महफूज है। इसकी सही बुखारी में भी इसकी हदीस आ चुकी, हमको उससे भी पता चला। क्यों गजवा ताबुक की तैयारी के जमाने में, गजवा ताबुक क्या है? जंग करना। एक गजवा में जंग करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको बुलाते हैं, सबको दावत देते हैं। उसके बारे में क्या है? गजवा ताबुक की तैयारी के जमाने में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को गजवा में शरीक होने पर उबरा रहे हैं, तो मुसलमानों सबको बुलाकर आओ जंग करेंगे, हमें जंग करना है, जंग करना मुसलमान पर फर्ज है, जंग करने के लिए आ जाओ कर तो मुसलमानों को बुलाते हैं। एक हजरत काब क्या बोलते हैं, मैं भी उन 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 साहबों में शरीक रहा, मैं भी उनके साथ रहा उधर मस्जिद में। जब मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनता, दिल में सोचता कि मैं भी जरूर जाऊंगा। तो कब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते जंग के लिए आ जाओ, हमें जाना है को बोले तो काब बिन मालिक क्या बोलती हूँ साहबा, उन्होंने दिल में समझती मैं भी जरूर जाऊं जंग को, लेकिन वापस जब घर आते तो सुस्ती कर जाता। तो जब मैं उनके मजलिस में रहता तो दूर मैं क्या समझता हूँ, मैं भी जंग को जाना उनके साथ तो समझता हूँ। जब घर को आ जाने के बाद में सुस्ती कर जाता, तो घर में आकर दौड़ देर सोचने लगता हूँ, फिर सुस्ती से बैठ जाता हूँ और सोचता अभी बहुत वक्त है। मैं ये बात सोचता हूँ कि अभी बहुत वक्त है, इंशाल्लाह मैं जाऊंगा, ऐसा समझता है। मेरे पास सफर का सामान मौजूद है। सफर का सामान के तो तब जमाने में क्या, तलवार, घोड़ा, ये सब और मौजूद है। मैं सेहतमंद हूँ। सेहतमंद क्या, मैं तंदुरुस्ती है, मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं जंग में जा सकता हूँ। सवारी अच्छी से अच्छी मुहैया है। सवारी वो उनके एक से एक घोड़े अच्छे से अच्छे है, ऊँट भी अच्छे से अच्छे है, कभी भी निकलो मैं जा सकता हूँ करके ऐसा सोचते रहे। तो अब उनके साथ मैं जरा सबर कर, मैं अच्छे से अच्छी सवारी भी है, मेरा सेहत भी अच्छा है, मैं जल्दी जाकर उनमें शामिल हो जाऊंगा, ऐसा सोचते रहे। फिर वरना होता क्या, होते किया, फिर रवाना होते होते क्या देर लगेगी, क्या देर लगती, मुझे सवारी भी अच्छी है और मुझे सेहतमंद भी है और सब बात से मेरे पास है, मुझे क्या देर लगती, मैं जल्दी से जाकर उनमें मिल जाऊंगा। और ये बात टालती रहे टालती रही, यहाँ तक के सारे मुहा मुजाहिदीन मैदान में मैदान जंग में पहुंच गए। ये तो इन्हें यही बात सोच रहे, मेरे में सवारी अच्छी है, मुझे घोड़े अच्छे हैं, मेरे सेहत अच्छी है, इसलिए मैं जल्दी निकल जाता हूँ, जल्दी पहुंच जाता हूँ ना में। इसमें कहीं को मुझे मैं कहीं को जल्दी जाना, गएंगे थोड़ा देर से गएंगे सभी को बोल ऐसा सुस्ती करते रहे ये लोग। इन सब भी क्या करे, बहुत से मुसलमान इन सब भी मैदान जंग में पहुंच गए। उन सब पहुंच गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब बुलाए उनको आ जाओ करके,
उन सब चले गए और मैं मदीने में बैठा रहा, वही करता रहा। तो मदीने में उन सब गए जंग के लिए, इन्हों क्या करते रहे, मदीने में बैठकर वही सोचते रहे, अभी थोड़ा देर के बाद लगेंगे, अभी थोड़ी देर के बाद लगेंगे, ऐसा सोचते रहे। अब खबर आने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आने वाले हैं। तो उनको खबर मिली क्या, उनको पता चला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। और एक दिन मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए, और एक दिन क्या मालूम हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए। इन लोग जाने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए और सब मामूली मस्जिद में ठहरे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से आने के बाद में, जंग से आने के बाद में सीधा घर को आते नहीं, पहले मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद में जाकर ठहर को, हाँ 2 रकात नमाज अदा कर को, अल्लाह का शुक्र अदा कर को, बाद में घर में पहुंचे। जब मस्जिद में ठहरे हुए ही मैं भी मस्जिद में पहुंच गया। कौन? काब इब्न मालिक, इन्हों भी मस्जिद में गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए को बोल के मालूम हुआ, मस्जिद में सभी जाते रहे, इन्हों भी उनके साथ चले गए। यहाँ मुनाफिकीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। मुनाफिकीन के तो कौन? आदमी के सामने आदमी की बात बोलने वाले है, तो नहीं तो झूठ बोलने वाले। इन्हों मुसलमान इना को मुनाफिक कही को बोले, इना 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 की जुबान एक बात करती, दिल एक बात करती। ऐसे लोग तुम्हारे सामने तुम्हारे बात, हमारे सामने हमारे बात बोलने वालों को कुरान क्या बोला? मुनाफिकीन को बोला। इन्हों क्या करते रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बहुत से रहे थे और लंबी चौड़ी कस्में खा खा कर अपने उजूर पेश कर रहे थे। इन सब जाको बहुत बहुत अल्लाह की कसम, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा होना को करे ने, हमें ऐसा बीमार रहे, हमें ऐसा रहा, वैसे रहे, ऐसे रहे, बहुत से उजूर पेश करने लगे, बहुत से उनके तकलीफें बताने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बताई हुई बातें सुनकर उनके ज़ाहिरी हुजूर कबूल कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, उनको गैब का इल्म नहीं, इसीलिए उन्होंने क्या बोलते रहे, उन्हें तो बोले तो ऐसे कसमें खा खा कर उन्हें बोलते रहते, मुझे ऐसा हुआ, ये मुश्किल रहा, वो मुश्किल रहा, ऐसा बोलने टाइम पर कसम खाकर बोलने टाइम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसका मालूम नहीं, इसका गैब का इल्म नहीं, फिर भी क्या बोलते थे उन्होंने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए फरमाते जाते, खुदा तुम्हें माफ करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या बोले उस पर, तुम्हें आए ने, तुम्हें कहीं को आए ने, किधर आए ने, को दोबारा टाइम पूछ नहीं सका, खलास तुम्हें आए ने, अल्लाह तुम्हें माफ करो, तो बोल को अल्लाह पर ये कर पाले होना। जब मेरी बारी आई, किसकी? जब काब इब्न मालिक की बारी आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, कहो तुम्हें किसी चीज ने रोका है? उनसे पूछे, तुम्हें भी बताओ, तुम्हारे किस चीज ने रोका था? मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट में गुस्से के आसार हैं। देखो सुभान अल्लाह, उन्होंने मुस्कुरा कर बोलते हैं इना को, हाँ बोलो तुम्हारे को क्या चीज रोकी थी, कई को आए ने तुम्हें जंग के लिए को बोल को बोलने टाइम को उनके चेहरे में, उनकी मुस्कुराहट में गुस्सा भी नजर आता है इनको। किनको? काप काप इब्न मालिक को। उन्होंने क्या बोलनी, और आसार आसार है, और मैंने साफ साफ बात कह डाली। कौन? काब बिन मालिक। साफ साफ के तो जो कुछ भी सही है वो बता डाले इसे, अय अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाकई यह है कि मुझे कोई उज़र ना था, तो मुझे कोई भी तकलीफ नहीं, ना कोई भी मुश्किल नहीं, तो बोल को बोले उन्होंने। मैं सेहतमंद था, मैं सेहतमंद के तो मैं बीमारी तो नहीं, मैं अच्छा तंदुरुस्ती है मैं करने पर, खुशहाली था, मेरा आसपास में खुशहाली। तो वो टाइम में खजूर का पकना बहुत अच्छा था, और अपना सभी खुशहाली था, उनका माहौल खुशहाली था। सवारी भी मैसर मेरे पास मौजूद थी, सवारी के तो घोड़े ऊंट सभी मेरे पास मौजूद है। बस मेरी सुस्ती और गफलत ने
मुझे इस सआदत से महरूम कर दिया। क्या बोले इन्हों, मेरे में सब भी है, मेरे सेहतमंद भी है और मैं आने के लिए मैं तंदुरुस्त भी है और मेरे में घोड़े भी है और खुशहाली भी है, सब भी अच्छा है। बस आने के लिए मेरी सुस्ती की गफलत, गफलत ये भी बोलते ना, कब कौन सा भी काम कब करना चाहो, जब उसे करना चाहिए, उसे सुस्ती ना कर, उस वो काम में सुस्ती नहीं करना, गफलत नहीं बरतना। जो अच्छा काम है, जो हमें करना चाहते हैं वो अच्छा है, लोगों को फायदा होता है या हमारे लिए फायदा होता है, वो नेक काम है, उसमें सुस्ती नहीं करना, गफलत नहीं करना, जल्दी से जल्दी अच्छा काम को करना बहुत अच्छा है। इन्होंने बताया मेरा क्या भी सुस्ती नहीं, क्या भी नहीं, इसलिए मैं बस गफलत में सुस्ती की वजह से मैं ऐसा करी, मैं नहीं आ सका। इधर तक रखेंगे इंशाल्लाह। अब वो ना उसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको थोड़ा ये जवाब दिया, अल्लाह तुम्हारा माफ करेगा बोलकर, वो पार्ट बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। 3वां पार्ट इधर तक हुआ। इसलिए कोई भी काम करने टाइम को फौरन वो काम का अंजाम देना चाहिए। इसलिए इन पे 50 दिन तक अल्लाह ताला क्या बोला है इनको, इनसे कोई भी बात करने को नहीं, इनको फोन भी इनके पास जाने को नहीं, इनको छीने को नहीं। ये 3 सहाबा गांव से बाहर हो गए, बहुत से उन्होंने गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ करे। दुआ करने के बाद में अल्लाह ताला 50 दिन के बाद में अल्लाह उनकी तौबा कबूल करे, कर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बताया कि काब बिन मालिक और वो 2 साहबा के नाम, इन तीनों को खुशखबरी दो, मैं उनको माफ कर डाली। उनको बोलने से वो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को भेजकर सुनाने से वो बहुत खुश हो गए। खुश हो गए, आज आने के बाद में, मदीने को आने के बाद में बहुत उनके आयल औलाद से खुश रहे। इससे हमें क्या पता चलता है, एक अगरचा हमें सही बात बोलकर, सही बात किसी को भी दुख लगती, वो बात अच्छी नहीं लगती, फिर भी सही बात बोलने से, सही काम करने से एक बार ही जो दुख होता, एक बार ही जो वो बात को ये करने के लिए, कबूल करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। वही हमें झूठ बात बोलने के लिए एक बार खत्म नहीं होता, झूठ को झूठ बढ़ाने के लिए बहुत से कस्में खाने पड़ता, बहुत से गुनाह में दलदल में फंस जाना पड़ता। इसीलिए हमें क्या करना, सच्ची बात करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना और नेक काम में सबकत करना और सुस्ती और काहली की वजह से गफलत नहीं बरतना। इससे जो भी हम करते हैं नेक काम करना, बहुत से फायदे हैं। इसलिए इसलिए अल्लाह ताला तंग किया, फिर भी अल्लाह रहते जिंदगी रहे कयामत तक इन तीन की किस्सा सुनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की इस्लाह के लिए बहुत बेहतरीन सबक है ये तीन का वाक़ा। क्या उन्होंने करे तो गलती क्या, ना ज़िना करे, ना चोरी करे, ना शिरिक करे, ना कुछ करे, क्या करे, सुस्ती और गफलत, ये मेन पॉइंट है इसमें। क्या करे इन्हों, सुस्ती और गफलत वो करने का काम में देरी कर दे, करना कर है वो साहबा, उन्होंने बहुत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा मशहूर साहबा है, फिर भी सुस्ती और गफलत करने से क्या हुआ, उन पर 50 दिन की सजा दी अल्लाह ताला ने। इसलिए हमें क्या करते हैं, थोड़ा दिल को दर्द लगे दे, थोड़ा अपना वाला कोई फौत होने दे, थोड़ा कोई भी मुश्किल हमारे पाने दे, थोड़ा हमारा काम बने से करने दे, जब क्या करती हैं अल्लाह को कोसने लगती, क्या हम पर आना था ये, हमको ही ये दिन देखना था, हम हमें हमें क्या मिले अल्लाह को, अल्लाह अल्लाह कहाँ देखता है, क्या क्या है कि हमें अल्लाह पर इल्जाम लगाते। नहीं, ऐसा करना गुनाह है, कबीरा गुनाह में शामिल है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी हम करते हैं अल्लाह ताला को सब कुछ खबर है, इसलिए हमें सच्चे दिल से इंशाअल्लाह तौबा करेंगे। अगर चाहे हमसे कोई कोताही हुई, कोई गुनाह हुई, अल्लाह ताला माफ करने वाला है। इंशाअल्लाह हम ये 3वां पार्ट सुनिए आप सब, इंशाअल्लाह इसमें गौर व फिक्र करिए, ये वाकये से हमें बहुत से सबक मिलते हैं इंशाअल्लाह। हम दुआ करेंगे अब। औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा नशवशवती फ़ी क़बरी, अल्लाहुम्मा रहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम, वजअल वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत व अल्लिमनी मिन्हु मा जहल्त
وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار وجعله لي حجة يا رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. أذهب البأس رب الناس أشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي اغفر لي وارحم أنت أنت خير الراحمين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.